Good afternoon, 11th class. So, we are on chapter number 16, the last chapter of geography, the book Fundamentals of Physical Geography, है ना, of 11th class. So, in this chapter, we will be talking about biodiversity and then few points about their conservation. Now, when we study this chapter, you will notice that there are many things that we have already gone through in detail, and somewhere they are trying to wind up and have included this chapter separately so that we understand the importance of biodiversity, and along with that we also try to conserve it, okay, and we know the importance of its conservation. So now let us start. Now, when we start the chapter, we know that because there we have already studied in detail that there are many geomorphic processes, particularly weathering and the depth of weathering mental in different climatic zones. And because of which we know obviously क्या होगा, because इतना फॉर्मेशन के टाइम इतने सारे प्रोसेसेस हुए थे, तो ऑब्वियसली जो डाइवर्सिटी है ऑफ वेजिटेशन and animals will also vary. So we know that weathering mantle is the basis for diversity of vegetation, and that is why also for biodiversity. And the basic cause of weathering variation and the resultant biodiversity is the input of solar energy and water. So again we know and we need to understand here that there are many you can say other factors also which help in increasing the biodiversity somewhere, okay. So there are many processes, and about these processes we have already studied in the previous chapter. So हमने पढ़ा हुआ है geomorphic process. We have studied about the solar energy, and we have studied about how it affects the kind of diversity that exists and also the importance of water. So basically we know that क्योंकि इतने सारे processes के through होता है और हमारी earth जो है it has so much of variations in everything, whether it is relief, whether it is environmental condition and so many things. That is why obviously जो variety है वो भी अपने पास बहुत ज़्यादा होती है of diversity. So that is why the areas that are rich in these inputs are the areas of wide spectrum of biodiversity. Now, relating to this only, they have given us a box in which they are trying us to understand that there are so many variations, or you can say biodiversity kitni extensive hai. Biodiversity, as we have today, is the result of 2.5 to 3.5 billion years of evolution. Before the advent of humans, our earth supported more diversity than the other period. यानी human beings आए थे उससे पहले और ज़्यादा biodiversity थी, और जैसे ही obviously human beings आए तो biodiversity जो है वो decline होने लग गई, with one or the other species becoming extinct. We already know there are many of the wild animals and also plants which have got extinct, and obviously we know the main reason were human beings because we overuse the natural resources. Then the number of species globally vary from 2 million to 100 million. ओके इतना डिफरेंस, इतना वेरिएशन है, विथ बेस्ट एस्टिमेट अराउंड 10 मिलियन है, ठीक है. न्यू स्पीशीज आर रेगुलरली डिस्कवर्ड, मोस्ट ऑफ विच आर येट टू बी क्लासिफाइड. यानी कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो डिस्कवर होती रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो अभी भी हम क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं. एक एस्टिमेट है कि अबाउट 40% ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस फ्रॉम साउथ अमेरिका इवन आर नॉट क्लासिफाइड एज येट. एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो हमें पता है बहुत रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी. वी नो ट्रॉपिकल एरिया बेसिकली बिटवीन बोथ द ट्रॉपिक्स, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है, नियर द इक्वेटर टेम्परेचर आर हाई एंड द रेनफॉल इज ऑल्सो यू कैन से एक्सटेंड्स टू ग्रेट क्वांटिटी. बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा होती है एंड वेराइटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो वेरी वेरी डाइवर्स देयर. बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट एवोल्यूशन. हमें पता है सिंस टाइम इममेमोरियल ह्यूमन बीइंग्स आर एक्चुअली इवॉल्विंग.
ओके तो चाहे वो इंडिविजुअल एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हो या फिर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू टोटल अगर हम देखें तो समवेयर ऑलवेज एवोल्यूशन होता है. द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ अ स्पीशीज एस्टिमेटेड बिटवीन 1 and 4 million years ago and 99% of the species that have ever lived on the earth are today extinct. तो ये यही बोल रहे हैं हाफ लाइफ एवरेज हाफ लाइफ ऑफ स्पीशीज इज एस्टिमेटेड मतलब ऑलमोस्ट ऐसे जो उसका 50% जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पीशी का वो अगर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो एकदम टोटली ही अलग हो जाएगा. इट विल बिकम समथिंग एल्स ओनली. मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एटलीस्ट 50% होना चाहिए एंड समवेयर हम बोलेंगे अदरवाइज उनके नंबर्स में क्या है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो जाएगा. एंड एज दे आर सेइंग 99% ऑफ द स्पीशीज जो हैं जो कभी अर्थ में रहे थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. अपने को यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, वी ह्यूमंस आर स्टिल इवॉल्विंग एंड वी नो कि हम कितने एवोल्यूशंस के थ्रू फाइनली होमोसेपियंस बने हैं. बीच में कितना अपना निएंडरथैल्स, होमो हेबिलिस, सो मेनी stages were there and then finally we evolved to human beings or homo sapiens. तो ये यही बोल रहे हैं कि there is always a kind of evolution that is taking place. बायोडाइवर्सिटी अर्थ में बहुत ज़्यादा अपने को मिलती है. हमें पता है सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया में होती है. एज आई जस्ट सेड कि वहाँ पे कंडीशन मोस्ट सूटेबल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ दीज डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी. ठीक है तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम पोलर रीजन्स की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे कि लार्जर और लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पीशीज, यानी स्पीशीज कम है पर उनकी पॉपुलेशन जो है उन एरियाज में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है. बायोडाइवर्सिटी itself is a combination of two words. Bio means life and diversity means variety. Now, in simple terms, biodiversity is the number and variety of organisms found within a specified geographic region. यानी अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो बायोडाइवर्सिटी वो नंबर और वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक स्पेसिफाइड जोग्राफिकल रीजन में रहते हैं. इट रेफर्स टू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब इंक्लूडेड हैं बायोडाइवर्सिटी में. ठीक है. जीन्स दे कंटेन, द इकोसिस्टम दे फॉर्म, yes, all of them are included in it. It relates to variability among living organisms on the earth, including variability within and between the species, and that within or between the ecosystem. यानी कि ये उससे भी डायरेक्टली रिलेटेड है कि स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम. That means all of them are somewhere interrelated and we'll study about them कि अगर एक भी चीज़ पे हम देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट होगा तो it will be felt in all the other related things. Now हमें पता है जो भी हमारे पास अभी बायोडाइवर्सिटी है ये अपना एक लिविंग वेल्थ है ना. लिविंग है इसलिए और अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द होल अर्थ. तो इसीलिए लिविंग वेल्थ एंड देन इट इज रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. हमें पता है ये क्यों हुआ है. फाइनली इट इज अ रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स. इतने सालों बाद ये एवोल्यूशन, इतने सालों तक होते होते ये एवोल्यूशन हुआ है. तो जब भी हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं कि भाई जो लाइफ है वो कितनी डाइवर्स है, कितनी वैरायटी है लाइफ में, तो हम उसको 3 लेवल्स पे पढ़ते हैं. एक तो होता है जेनेटिक, then we have species and then we have ecosystem. Okay, so basically we study biodiversity at 3 levels: genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. So let us quickly move on to genetic diversity. जीन्स होते क्या है बेसिकली. जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स. यानी कि अलग अलग जो लाइफ फॉर्म्स है उनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम बोलते हैं जीन्स. यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक फोर्स है हम बोलेंगे, हम इसको बोल सकते हैं बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसका हम बोलेंगे कि रिजल्ट क्या होता है, हेरिडेटरी. We many times say when we find certain kind of similarity between
ऑफस्प्रिंग, सपोज फादर एंड सन, तो हम बोलते हैं फादर की जीन्स है इसमें, तो समवेयर यू कैन रिलेट इट टू दिस बेसिक फिजिकल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, जो उसको हम बोल सकते हैं जीन्स। तो जैसे हम समवेयर डीएनए और इन सब चीजों की बात करते हैं। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज। Groups of individual organisms having certain similarities in their physical characteristics are called species. यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम बोलते हैं स्पीशीज। ओके, लेट अस अगेन अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स जो हैं जेनेटिकली दे बिलोंग टू द होमो सेपियंस ग्रुप एंड ऑल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस एट्सेट्रा कंसिडरेबली। मतलब क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनमें जनरल कुछ सिमिलैरिटी हो बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम उसको स्पीशीज बोल देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि होमो सेपियंस जो है बेसिकली ये एक पर्टिकुलर स्पीशी है, क्योंकि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेम होते हैं, बट जेनेटिकली देखें तो ये बिलोंग होते हैं टू होमो सेपियंस। होमो बीइंग्स जेनेटिकली बिलोंग टू होमो सेपियंस, बट होमो सेपियंस में बिलोंग करने के बाद भी इनमें फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू स्पीशीज। ओके, यानी जीन्स के हिसाब से होमो सेपियंस ग्रुप है, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी। एंड दिस इज समवेयर ऑल्सो ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जेनेटिक में भी डाइवर्सिटी हो सकती है। ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है एक्चुअली में ये बहुत ज़रूरी है। इट इज असेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, यानी कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी, ताकि हेल्दी ब्रीडिंग हो पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज के लिए, यानी इंटरब्रीडिंग हो, पॉपुलेशन बढ़े, उसका नंबर चेंज हो। सो दैट इज व्हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ये तो अपना हो गया कि जब अपने फर्स्ट पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाउ वी नो कि स्पीशीज डाइवर्सिटी का बेसिक मतलब है कि स्पीशीज जो उसमें बहुत वैरायटी होना। तो नंबर एक डिफाइंड एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में, एक स्पेसिफाइड एरिया में अगर जो स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो हमें पता है वहाँ पे स्पीशीज की क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, अबंडेंस एंड टाइप्स, यानी जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं उसकी रिचनेस के थ्रू, उसकी अबंडेंस के थ्रू, कितनी रिच है मतलब कितनी अलग अलग टाइप की वैरायटीज है। अबंडेंस यानी नंबर कितने ज़्यादा है और कितने टाइप्स की हैं, तो उससे हम देख सकते हैं डाइवर्सिटी कितनी है। सम एरियाज आर मोर रिच इन स्पीशीज देन अदर्स, तो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे स्पीशीज बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी अदर। तो ऐसी एरिया जहाँ जो कि बहुत रिच होती है स्पीशीज में, जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी होती है, उसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आ जाते हैं ऑन आवर थर्ड वन विच इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, हमें पता है इकोसिस्टम इज बेसिकली यू कैन से बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट जब आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में जिस हिसाब से इंटरैक्ट करते हैं उसको हम बोल देते हैं इकोसिस्टम। सो जब हमें पता है कि जो इकोसिस्टम अलग होगा तो वी नो कि ऑब्वियसली क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। तो द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स and the diversity of habitats and the ecological processes occurring within each ecosystem type constitute the ecosystem diversity, यानी कि जब इकोसिस्टम टाइप्स भी बहुत सारी हैं और ऑब्वियसली इकोसिस्टम टाइप्स है तो टाइप ऑफ हैबिटेट्स भी अलग है,
और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी जिस हिसाब से इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या चीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरैक्शन है, जो प्रोसेसेस हैं, वो उनमें बेसिकली उनमें कितना डिफरेंस है, उससे फर्क पड़ता है कि कितनी डाइवर्सिटी होगी। वी नो एक मराइन लाइफ, एक एक्वेटिक एरिया में अलग इकोसिस्टम, अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी होगी, टेरेस्ट्रियल में अलग होगी, एक्वेटिक में, यानी बेसिकली हमें पता है कि जितना इकोसिस्टम अलग होगा उतनी बायोडाइवर्सिटी अलग होगी। एंड ये जो हम बात कर रहे हैं हैबिटेट की, इकोलॉजिकल प्रोसेस की, इकोसिस्टम की, इनकी कोई फिक्स लाइन नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, बिकॉज ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। और ऐसे कोई रिजिडली डिफाइन नहीं है कि यहीं तक है या इसी एरिया तक है। तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है इनकी बाउंड्रीज करना, बिकॉज दे आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड। बट इनके इंटरेक्शन से ही वी नो दैट देयर इज लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, जब हमने इतनी बात कर ही ली अबाउट बायोडाइवर्सिटी, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. So before we move on to the importance of biodiversity, we again need to understand few things. We already know most of them कि बायोडाइवर्सिटी जो है उससे ह्यूमन कल्चर की डेवलपमेंट की है। हमें पता है इन टर्न ह्यूमन बींग्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर एट जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल लेवल। ह्यूमन बींग्स हमेशा चेंज लाते रहते हैं, चाहे अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर, तो सिमिलरली हम तो टोटली डिपेंडेंट है ही ऑन द, यू कैन से, नेचर। तो हम लोग समवेयर जो भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है और जो डाइवर्सिटी ऑफ नेचर है उसमें हम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो हमने बेसिकली चेंजेस लाए हैं या हम डाइवर्सिटी लाए हैं इन द फॉर्म्स ऑफ जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल लेवल्स। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस अ लॉट इन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। द वेरी सर्वाइवल इज पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक टुगेदर। तो एक में डिस्टर्बेंस आएगा तो सब में डिस्टर्बेंस आएगा। सो वी नो दैट बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी इम्पोर्टेंट अगर हम स्पेसिफिक टर्म्स में पढ़ना चाहें, स्पेसिफिक टर्म्स में, इन टू अंडरस्टैंड बेटर, कि हम पढ़ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज द फॉलोइंग रोल्स: इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। ठीक है, तो इसमें पहले हम इकोनॉमिक रोल पहले हम पढ़ेंगे बेसिकली अबाउट द इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल में क्या है, हमें पता है कि इकोसिस्टम इज द काइंड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो स्पीशीज ऑफ मैनी काइंड्स परफॉर्म सम फंक्शन और द अदर इन एन इकोसिस्टम। हमें पता है एवरी स्पीशी इज डूइंग वन और द अदर काइंड ऑफ थिंग, और उनका एवोल्यूशन हो रहा है, और उनका सस्टेनेंस जो है, यानी वो जो यहाँ पे है वो किसी ना किसी रीजन से ही है। हर ऑर्गेनिज्म अपनी नीड्स को फुलफिल करने के अलावा और किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की नीड के कंट्रीब्यूट करता ही करता है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें टू अंडरस्टैंड, वी एक्सेल CO2 एंड वी इनहेल ऑक्सीजन, वेयरएज जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, दे एक्चुअली गिव आउट ऑक्सीजन एंड दे टेक इन CO2। यानी हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, तो इकोसिस्टम मेंटेन ही इसलिए है। सो वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। स्पीशीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी। ठीक है, स्पीशीज कैप्चर करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, प्रोड्यूस करती है, इवन ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिकम्पोज होते हैं। उसके बाद चाहे हम वाटर साइकिल की बात करें, चाहे हम न्यूट्रिएंट की करें, एवरीथिंग इज सर्कुलेटिंग इन द इकोसिस्टम। Fix atmospheric gases, regulate climate. We know trees regulate climate. We know that the let us take an example कि leguminous plants जो हैं उनकी roots में होते हैं rhizobium bacteria, जो क्या करते हैं, rhizobium bacteria जो हैं वो atmospheric nitrogen को change करते हैं into ammonium compounds so that the soil and the roots of the plant can use it. That means
here I want to make you understand that all the things are somewhere related and all of them are interlinked, and all of them have their role to play in the ecosystem and help the ecosystem to continue, and somewhere help in the survival and of ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कोई भी डिस्टर्बेंस अगर इकोसिस्टम में हुआ तो वो आगे जाके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर ऑर्गेनिज्म पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो बेसिकली द मोर डाइवर्स the ecosystem, better are the chances for the species to survive through adversity and attacks, एंड ऑब्वियसली मोर प्रोडक्टिव। हमें पता है कि जो इकोसिस्टम है उसके फंक्शंस और बेसिकली बहुत ज़रूरी है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अगर इकोसिस्टम ज़्यादा डाइवर्स है, वी शुड अंडरस्टैंड, अगर बहुत डाइवर्स है तो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, एडवर्स सिचुएशन आ गई, सपोज एक स्पीशी में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ सपोज एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा उस केस में सर्वाइवल ज़्यादा पॉसिबल होगा, इजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बायोडाइवर्सिटी थी और इकोसिस्टम भी बहुत वेरिड था, ठीक है, डाइवर्स था इसलिए। एंड द लॉस ऑफ स्पीशीज वुड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ। हमें पता है अगर कोई भी स्पीशीज में से रिमूव हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो क्या होगा, एबिलिटी जो है सिस्टम की अपने आप को मेंटेन करने की, वो समवेयर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हो जाएगी। जस्ट लाइक अ स्पीशीज विद अ हाई बायोडाइवर्सिटी मे हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ अडॉप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो सपोज इसी तरीके से अगर कोई ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और एनवायरमेंटल चेंज हो गया, तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो अडॉप्ट हो पाएगी वहाँ पे उसकी सिचुएशन के हिसाब से। सो इन अदर वर्ड्स, द मोर द वैरायटी ऑफ स्पीशीज एंड एन इकोसिस्टम, द मोर स्टेबल द इकोसिस्टम इज लाइकली टू बी। यानी दूसरे वर्ड्स में, जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज है इकोसिस्टम में, उतना ही क्या होगा, अपना सिस्टम जो है ज़्यादा स्टेबल होने की चांसेस है। Please understand, I'm again repeating, everything is linked in our environment, in our ecosystem. If we disturb any one thing, the effect will be felt. हमें पता है, एक सिंपल एग्जांपल ले ले फूड चेन का भी, अगर उसमें से एक हर्बीवोर्स वाला अगर हमारा सेक्शन निकल जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, पूरी साइकिल में प्रॉब्लम होगी। सो सिमिलरली, चाहे हम इकोसिस्टम की बात करें, चाहे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक चेंज से इम्बैलेंस हो सकता है, पर जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है या इकोनॉमिक जो अपनी इकोलॉजी में डाइवर्सिटी है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा चांसेस होते हैं एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव होने के। Now we come to economic role of biodiversity. Economic role of biodiversity क्या है, for all humans biodiversity जो है एक बहुत important source है डे टू डे लाइफ में। हमें पता है बायोडाइवर्सिटी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करता है। हम जब नॉर्मल बात करें बायोडाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी जिसको हम एग्रो डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, हमें पता है एग्रीकल्चर का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। बायोडाइवर्सिटी को हम रिजर्वॉयर ऑफ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड के लिए, चाहे अपने फार्मास्यूटिकल्स के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये चीज़ों के लिए हमने बायोडाइवर्सिटी को बहुत यूज़ किया, बट क्योंकि हमने बिना सोचे समझे यूज़ किया है, इसलिए इससे बायोडाइवर्सिटी का डिटोरेशन हो रहा है, ठीक है। At the same time, it is also the origin of new conflict, dealing with rules of division and appropriation of natural resources. यानी इसी टाइम पे क्या है, जो इट इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, जो नए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एंड बेसिकली विद द रूल ऑफ डिविजन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी बेसिकली जिस हिसाब से हम देखेंगे, सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि इस टाइम पे ऑब्वियसली एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि किस हिसाब से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, ठीक है। इकोनॉमिक कमोडिटीज़ जो बायोडाइवर्सिटी अपने को सप्लाई करती है, फूड, क्रॉप, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट, फिश, मेडिसिनल रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑन द साइंटिफिक रोल
अगेन साइंटिफिक रोल कैसे, बेसिकली हमें बायोडाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बायोडाइवर्सिटी जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच स्पीशी कैन गिव अस सम क्लू एज हाउ लाइफ इवॉल्व एंड विल कंटिन्यू टू इवॉल्व। हर स्पीशी हमें एक हिंट देती है, उसकी स्टडी से हमें पता चलता है कि लाइफ इवॉल्व हुई कैसे, वो चीज़ आई कैसे, वो किस किस स्टेजेस से मूव होके आई, और ये भी कि कंटिन्यू हो रही है, वो कैसे इवॉल्व हो रही है। बायोडाइवर्सिटी हमें ये भी हेल्प करता है ये समझने में कि लाइफ कैसे फंक्शन करती है, हर स्पीशी का क्या रोल है इकोसिस्टम में, और किस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं, इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें रोल इम्पॉर्टेंट रोल जो है अपना प्ले करते हैं। नाउ दैट इज वाई वी नो कि साइंटिफिक रोल भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत है, बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट नॉट ओनली हाउ द लाइफ बिगैन, इवॉल्व, कंटिन्यू, हाउ द स्पीशीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम and how they affect everything. This fact must be drawn upon every one of us so that we live and let other species also live their lives. So basically हमें इससे ये समझना चाहिए कि हमें basically it is our duty, we should understand that we live and let other species live, otherwise obviously things will not be in favor of human beings. Now finally it is our ethical responsibility to consider कि हर species जो है along with us has an intrinsic right to exist. हर organisms का ये right है कि उसको life to live मतलब the right to live है, and especially to exist. So every species have the right to exist. तो मॉरली एथिकली हमारी ये ड्यूटी है कि हम भी कुछ गलत जानबूझ के ना करें जिससे कि इन स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो जाए, which human beings have been doing. Now awareness has been created still. The level of biodiversity is good indicator of the state of our relationship with other living species. अगर बायोडाइवर्सिटी है तो अच्छी बायोडाइवर्सिटी है तो हमें ये समझ आएगा कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द लिविंग स्पीशीज जो है और ह्यूमन बींग्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है, तभी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो रही है बिटवीन ऑल डिफरेंट लिविंग स्पीशीज. In fact, the concept of biodiversity is an integral part of many human cultures. यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमन कल्चर्स के लिए, बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड, एज आई सेड, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, एंड if there is a imbalance created between any of the elements, obviously it will affect all the others. So हमें पता है we have understood about biodiversity, we have understood about its various importance. Okay, so with this we'll wind up today's class. In our next class we'll talk about loss of biodiversity, and then we will study about the steps of conservation taken so that we can conserve the biodiversity. Okay, so just give the portion a reading, the portion that we have covered today. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, come back with your problems and we'll discuss and solve the problem. Okay, so meet you all in the next class.